No exhaustive list is possible. In a case, the Supreme Court quashed the selection list prepared by the Departmental Promotion Committee, which had considered the confidential reports of candidates prepared by an officer who himself was a candidate for promotion. However, in order to challenge administrative action successfully on ground of personal bias, it is essential to prove that there is a reasonable suspicion of bias or a real likelihood of bias. The reasonable suspicion test looks mainly to outward appearance, and real likelihood test focuses on the court's own evaluation of possibilities. But in practice, the tests have much in common with one another, and in the vast majority of cases, they will lead to the same result. In this area of biasness, the real question is whether a person was biased. It is difficult to prove the state of mind of a person. Therefore, what the courts see is whether there is reasonable ground for believing that deciding officer was likely to have been biased. In deciding the question of bias, judges have to take into consideration the human possibilities and the ordinary course of human conduct. But there must be real likelihood of bias and not mere suspicion of bias before the proceedings can be quashed on the grounds that the person conducting the proceedings is disqualified by bias. The apprehension must be judged from a healthy, reasonable, and average point of view, uh, and not on mere apprehension and vague suspicion of whimsical, capricious, and unreasonable people. तो मैं आपको इस पैरा का हिंदी में ट्रांसलेशन समझाऊंगा। जस्ट अ सेकंड। और देखिए, इस पैराग्राफ में पर्सनल बायस वाले हमें बताया गया है कि पर्सनल बायस तब होता है जब डिसीजन लेने वाले व्यक्ति के और पार्टीज के बीच में कि कुछ बीच में कुछ ऐसी रिलेशनशिप हो जो उन्हें एक पार्टी में के पक्ष में या विरोध रखती है। ये रिलेशनशिप पर्सनल या प्रोफेशनल दुश्मनियां या दोस्ती से डेवलप हो सकती हैं, लेकिन इसका एग्जॉस्टिवली लिस्ट बनाना मुश्किल है। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिलेक्शन लिस्ट को क्वॉश कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था, जो कि डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी ने प्रिपेयर की थी। ये लिस्ट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के आधार पर थी जो एक ऑफिसर ने बनाई थी, जो खुद भी प्रमोशन के लिए कैंडिडेट था। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को पर्सनल बायस के ग्राउंड पर चैलेंज करने के लिए ये साबित करना जरूरी है कि रीजनेबल सस्पिशन ऑफ बायस या रियल लाइक्लीहुड ऑफ बायस है। रीजनेबल सस्पिशन टेस्ट फॉरवर्ड अपीयरेंस को देखता है, जबकि रियल लाइक्लीहुड टेस्ट कोर्ट के अपनी वैल्यूएशन को देखता है। लेकिन दोनों टेस्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिमिलर होता है और ज्यादा केसेस में ये सेम रिजल्ट देंगे। बायस का असली सवाल ये नहीं होता कि क्या कोई व्यक्ति बायस था, ये प्रूव करना मुश्किल होता है। कोर्ट देखती है कि क्या डिसीजन ऑफिसर के बायस होने के रीजनेबल ग्राउंड्स हैं। बायस के क्वेश्चन को ह्यूमन पॉसिबिलिटीज और ऑर्डिनरी ह्यूमन कंडक्ट को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन क्वैश करने के लिए ये जरूरी है कि रियल लाइक्लीहुड ऑफ बायस हो, ना हो कि बस सस्पिशन ऑफ बायस। ये एप्रीहेंशन हेल्दी, रीजनेबल और एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से जज किया जाता है, ना विमिस्कल और कैप्रिकस लोगों के वेक सस्पिशन से। तो इस पैराग्राफ में हमें पर्सनल बायस वाले मेट में ही बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा पेक्यूनियरी बायस। ये जो हम कर रहे हैं ये सारे टाइप्स ऑफ बायसनेस हैं, तो इसको जरा ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा किसी रजिस्टर में अपने नोट्स वगैरह में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पेक्यूनियरी बायस। द judicial approach is unanimous and decisive on the point that any financial interest, howsoever small it may be, would vitiate
administrative action. The disqualification will not be avoided by non-participation of the biased member in the proceedings if he/she was present. The Supreme Court, in a case of quash, the decision of the textbook selection committee house become some of its members were also authors of books which were considered for selection when the decision was reached. तो इसका मतलब है ज्यूडिशियल अप्रोच कहता है कि कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को खारिज कर सकता है। अगर कोई मेंबर बायस्ड है तो उसका डिसीजन नॉन पार्टिसिपेशन भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा अगर वो प्रेजेंट था। एक सुप्रीम कोर्ट के केस में टेक्स्ट बुक सिलेक्शन कमेटी के डिसीजन को क्वैश कर दिया गया क्योंकि कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो बुक्स के ऑथर्स भी थे और जो सिलेक्शन के लिए कंसीडर गई थी जो सिलेक्शन के लिए कंसीडर की गई थी बेसिकली, इसलिए उनका डिसीजन बायस था। तो पेक्यूनरी बायस में बस इतना ही। अगला है सब्जेक्ट मैटर बायस। Those cases fall within this category where the deciding officer is directly or otherwise involved in the subject matter of the case. Here, again, mayor involvement would not be vitiate the administrative action unless there is a real likelihood of bias. In the case of Supreme Court quashed the decision of Andhra Pradesh government nationalizing road transport on the ground that the Secretary of the Transport Department who gave hearing was interesting in this subject matter. तो इसका मतलब है कि इस कैटेगरी में वो केसेस आते हैं जहां डिसाइडिंग ऑफिसर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केस के सब्जेक्ट मैटर से इन्वॉल्व होता है। सिर्फ इन्वॉल्वमेंट से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन गलत नहीं होता जब तक बायस होने की रियल लाइक्लीहुड ना हो। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट नेशनलाइजेशन के डिसीजन को क्वैश कर दिया था क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो हियरिंग दे रहे थे उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड थे। तो सब्जेक्ट मैटर बायस में इतना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिपार्टमेंटल बायस। The problem of departmental bias is something which is inherent in the administrative process, and if it is not effectively checked, it may negate the very concept of fairness in the administrative proceedings. The problem of departmental bias also arises in a different context when the function of judge and prosecutor are combined in the same department. It is not uncommon to find that the same department which initiates a matter also decides it. Therefore, at times, departmental fraternity and loyalty militates against the concept of fair hearing. In a case of Supreme Court quashed the notification of comment which had conferred powers of Deputy Superintendent of Police on the General Manager Haryana Roadways in matters of inspection of vehicles on the ground of departmental bias. In this case, private bus operators had alleged that the general manager of Haryana Roadways, who is a rival in business in the state, cannot be expected to discharge his duties in a fair and reasonable manner. He would be too lenient in inspecting the vehicles belonging to his own department. The reason of quashing the notification according to the Supreme Court was the conflict between the duty and the interest of the department and the consequential erosion of public confidence in administrative justice। तो ये इस पैराग्राफ में कह रहा है कि डिपार्टमेंटल बायस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में होती है। अगर इसे ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये फेयरनेस को खत्म कर सकता है। जब जज और प्रोसिक्यूटर की ड्यूटीज एक ही डिपार्टमेंट में होती है तब भी डिपार्टमेंटल बायस का प्रॉब्लम होता है। अक्सर एक ही डिपार्टमेंट मैटर को शुरू भी करता है और डिसाइड भी करता है जो फेयर हियरिंग को अफेक्ट कर सकता है। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा रोडवेज के जनरल मैनेजर को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पावर्स देने वाले नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने कहा कि जनरल मैनेजर जो अपने डिपार्टमेंट का राइवल है वो अपने डिपार्टमेंट के व्हीकल्स को अनफेयरली इंस्पेक्ट कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया क्योंकि डिपार्टमेंट के
ड्यूटी और इंटरेस्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट और पब्लिक कॉन्फिडेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस की कमी थी। तो ये बस इतना ही डिपार्टमेंटल बायस में। तो लास्ट बायस, प्री कन्विंस्ड नोशन बायस। अब ये बस इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा, बाकी की जो वीडियो है वो अगले पार्ट में आएगी। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। सो या, प्री कन्विंस्ड नोशन बायस। Bias arising out of the preconceived notion is a very delicate problem of administrative law. On the one hand, no judge, as human being, is expected to sit as a blank sheet of paper. On the paper, preconceived notion would vitiate a fair trial. The problem of bias arising from preconceived notion may have to be disposed of as an inherent limitation of the administrative process. It is useless to accuse of a public officer of bias merely because he is uh, predisposed in favor of some policy in the public interest. Bias would also not disqualify an officer from taking an action in if no other person is competent to act in his place. The limitation is grounded to the doctrine of necessity. However, the term bias must be confined to its proper place. If bias arising out of preconceived notion means the total absence of preconceptions in the mind of judge, then no one has ever had fair trial and no one ever will. Therefore, unless the strength of the preconceived notion is such that it has the capacity of foreclosing the mind of the judge, administrative action would नॉट बी विशिएटेड। तो अब इसमें समझा रहे हैं कि बायस जो प्री कन्विक्शन नोशन से आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक डेलिकेट प्रॉब्लम है। एक तरफ जज एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर नहीं हो सकता, दूसरी तरफ प्री कन्विक्शन नोशन फेयर ट्रायल को अफेक्ट कर सकती है। बायस को हैंडल करना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। पब्लिक ऑफिसर को बायस के लिए एक्यूज करना बेकार है अगर वो किसी पॉलिसी के फेवर में हो जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। अगर कोई और कॉम्पिटेंट नहीं है तो ऑफिसर का बायस उस एक्शन से उसे नहीं हटा सकता। ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पर बेस्ड है, लेकिन बायस को उसके प्रॉपर प्लेस में ही रखना चाहिए। अगर बायस का मतलब ये है कि जज के दिमाग में कोई प्री कंसेप्शन नहीं होनी चाहिए तो कभी भी फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक प्री कन्विंस्ड नोशन जज के माइंड को पूरी तरह से क्लोज नहीं कर देती, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को विशिएट नहीं किया जाएगा। तो अभी तक इतना ही हमने करा। बाकी का 6.3 से, रूल ऑफ फेयर हियरिंग से, हम अगली वीडियो से करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका जल्दी आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और एक लाइक प्लीज़ मेरे लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक पे भी ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।